السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ جوبلی ہلز بائی الیکشن سے پہلے لگا کانگریس کو بڑا جھٹکا۔ حیدرآباد کے مشہور بزنس مین علی مسقطی اور شکیلا ریڈی نے BRS کیا جوائن۔ کیٹیا نے پارٹی کھنڈوا پہنا کر کیا دونوں کا استقبال۔ آنے والے جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب سے پہلے ایک اہم سیاسی پیش رفت میں بھارت راشٹر سمیتی BRS نے پارٹی کیڈر اور مورل کو مضبوط کرتے ہوئے شمولیت کی ایک تازہ لہر دیکھی۔ سینئر کانگریس لیڈر علی مسقطی اور سینئر تلگو دیشم پارٹی TDP خواتین کی لیڈر شکیلا ریڈی نے پارٹی کے ورکنگ صدر KT راما کی موجودگی میں باضابطہ طور پر BRS میں شمولیت اختیار کی۔ نئے آنے والوں کا استقبال پارٹی کھنڈوے کے ساتھ کیا گیا، جو گلابی کیمپ میں ان کے داخلے کی علامت ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے قائدین نے کہا کہ وہ سابق چیف منسٹر K چندرشیکھر راؤ کی قیادت اور تلنگانہ کے لیے ان کے ویژن سے متاثر ہیں، جس نے انہیں BRS کے ساتھ اتحاد کرنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ پارٹی ریاست کے مستقبل کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی رہے گی۔ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا گارمنٹس لایا ہے دھماکے دار ویڈنگ سیزن آفر، جہاں ہر لباس میں ہے شان اور انداز۔ ریڈی میڈ شیروانی، ریڈی میڈ سوٹ، ریڈی میڈ بلیزر اور ریڈی میڈ انڈو ویسٹرن کی خریداری پر پائیے 30% تک کا زبردست ڈسکاؤنٹ۔ اسٹیچنگ کے لیے ٹینشن چھوڑو، شیروانی، جودھ پوری اور بلیزر کی اسٹیچنگ صرف 1499 روپے میں، 2 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 1999 میں، 3 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 2999 میں۔ یہ ہے اصلی کلاسی ڈیل۔ ہر ڈریس کی کلودنگ فیبرک کی خریداری پر بھی پائیے 20% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ ریڈی میڈ پلین کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹399، ڈیزائنر ریڈی میڈ کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹799۔ کرتا پیجامہ اور پٹھانی کا فیبرک خریدنے پر اسٹیچنگ بالکل فری، اور بچوں کے لیے کرتا، پٹھانی، توپ اور شیروانی پر 25% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ شادی ہو یا کوئی خاص موقع، صفا گارمنٹس کے ساتھ بناؤ سب سے خاص۔ یاد رکھیے، شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا گارمنٹس، ٹوری چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ تلنگانہ حکومت نے BC ریزرویشن کے معاملے پر سپریم کورٹ میں خصوصی مرافعہ داخل کیا ہے۔ درخواست اس وقت دائر کی گئی جب ریاستی ہائی کورٹ نے مقامی بلدیداروں کے انتخابات میں BC طبقات کے لیے 42% ریزرویشن کے نفاذ پر اس ماہ عارضی طور پر روک لگا دی تھی۔ تلنگانہ حکومت نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ آئین میں ریزرویشن پر 50% کی حد مقرر کرنے کی کوئی شرط نہیں، اور سپریم کورٹ نے ہی اسے بطور رہنمائی اصول متعین کیا ہے۔ درخواست میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ خصوصی حالات میں ریزرویشن فراہم کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ اندرا ساہنی بامقابلہ یونین آف انڈیا اور جن ہت ابھیان بامقابلہ یونین آف انڈیا کے مقدمات میں سپریم کورٹ نے واضح کیا تھا۔ تلنگانہ میں مقامی بلدیداروں کے انتخابات میں BC کو کتنے فیصد ریزرویشن ملنے چاہیے، اس سلسلے میں جامع اور سائنسی مطالعہ کیا گیا۔ سماجی، اقتصادی، تعلیمی، ملازمت اور سیاسی سروے 2024-25 کے مطابق ریاست کی جملہ آبادی میں 56.33% افراد BC کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ درخواست میں یہ بھی یاد دلایا گیا کہ راہل رمیش واگھ بمقابلہ اسٹیٹ آف مہاراشٹر کے کیس میں سپریم کورٹ نے متعلقہ موقف کی توثیق کی تھی۔ اسی طرح تمل ناڈو گورنر کے خلاف ریاستی حکومت کے دائر کردہ کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی قابل ذکر۔ حکومت نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اسمبلی میں منظور شدہ بلز کے لیے اگر 3 ماہ کے اندر گورنر یا صدر کی منظوری نہیں ملتی تو انہیں منظوری دی جا چکی سمجھنا چاہیے۔ درخواستوں میں ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ حال ہی میں حکومت نے دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کے علاقوں میں 1,54,000 سفید راشن کارڈز کی منظوری دی ہے۔ اس اقدام کا مقصد مستحق خاندانوں کو روزمرہ کی ضروری اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ سول سپلائز ڈپارٹمنٹ نے ان کارڈز کے تحت اشیاء کی تقسیم کے انتظامات تیز کر دیے ہیں۔ جولائی میں پہلے مرحلے میں کارڈز جاری کیے گئے تھے اور بعد میں آنے والی درخواستوں کی جانچ کے بعد مزید اہل خاندانوں کو کارڈز فراہم کیے گئے۔ مجموعی طور پر تقریباً 6 لاکھ درخواستیں موصول ہوئی تھی، جن میں سے 1,54,276 خاندانوں کو اہلیہ قرار دے کر کارڈز جاری کیے گئے۔ ان کارڈز کے ذریعے تقریباً 5,77,000 افراد کو فائدہ پہنچے گا۔ نئے کارڈز کے تحت راشن کی تقسیم نومبر سے شروع کی جائے گی اور ان کے لیے تقریباً 3,463 ٹن چاول درکار ہوگا۔ حیدرآباد میں 64,179 راشن کارڈز پر 2,80,640 استفادہ کنندگان ہیں، جنہیں 1,600
683 टन चावल फराहम किया जाएगा। मिर्चल जिले में 45,649 राशन कार्ड्स पर 1,49,081 इस्तफादा कुनिंदगान को 894 टन चावल फराहम करने की जरूरत है। रंगारेड्डी जिले में 44,448 राशन कार्ड्स पर 1,47,765 इस्तफादा कुनिंदगान को 886 टन चावल फराहम किया जाएगा। महकमे सिविल सप्लाईज ने तमाम अजला में राशन की तकसीम के लिए मुकम्मल इंतजाम कर लिए हैं ताकि अहले शहरियों को बरवक्त राशन फराहम किया जा सके। तेलंगाना जागृति यूथ फेडरेशन के रियासती और जिले कायदीन को तकर्रुरनामे सदर तेलंगाना जागृति कलवाकुंटला कविता ने बंजारा हिल्स में वाक़ई जागृति दफ्तर में हवाले किए। इस मौके पर कलवाकुंटला कविता ने खिताब करते हुए कहा कि समाज में तब्दीली सिर्फ नौजवानों के जरिए मुमकिन है। अगर किसी को किसी भी तरह की तब्दीली चाहिए तो नौजवान इस वक्त तक चैन से नहीं बैठते जब तक वो तब्दीली हासिल ना कर ले। उन्होंने याद दिलाया कि चाहे तेलंगाना तहरीक हो या आज़ादी की जदोजहद, हर मौके पर नौजवानों ने ही कुलीदी किरदार अदा किया। कविता ने कहा है कि तेलंगाना में एक बेहतर समाज के क़याम के लिए हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं और इस जदोजहद में नौजवानों का किरदार निहायत अहम है। आखिर में कविता ने नई जिम्मेदारियां संभालने वाले कायदीन को नसीहत की और कहा कि वो अपनी कारकर्दगी से अच्छा नाम पैदा करें और तंजीम की साख को मजीद मजबूत बनाएं। हैदराबाद में ट्रैफिक के दौरान हॉर्नों की गूंज अब शहरियों के लिए एक बड़ी अजियत बन गई है। सड़क पर अगर कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी जरा सा रुक जाए तो पीछे आने वाले ड्राइवर्स के हॉर्नों की आवाज़ें शोर व गुल मचा देती हैं। सिग्नल पर रुकने के दौरान या किसी गाड़ी के ओवरटेक ना करने पर भी मुसलसल हॉर्न बजाने का रुझान आम हो चुका है। नतीजतन शहर के कई इलाकों में शोर की सतह खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। अस्पतालों, स्कूलों और रिहायशी इलाकों के आसपास तो सायरन, म्यूजिकल और मल्टी टोन हॉर्न्स के शोर से माहौल मुसलसल मुतासिर हो रहा। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट NEERI की रिपोर्ट के मुताबिक शहरी इलाकों में शोर की सतह मुकर्ररा हद से कहीं ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही। रिपोर्ट के मुताबिक शहर में शोर की शिद्दत 70 से 90 डेसिबल के दरमियान है, जबकि आलमी इदारे सेहत ने दिन में 53 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल की हद मुकर्रर की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रैफिक से पैदा होने वाले शोर में तकरीबन 60% हिस्सा हॉर्नों का है। शोर की शिद्दत में औसतन 7 से 10 डेसिबल का इजाफा देखा जा रहा। रियासती आलूदगी कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक रिहायशी इलाकों जैसे जुबली हिल्स और तारनाका में दिन के वक्त शोर की हद 55 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल मुकर्रर है, जबकि हसास इलाकों जैसे जूम पार्क और HCU गच्चीबौली में दिन के वक्त 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल की हद है। मगर अमली तौर पर इन इलाकों में शोर की सतह इन हदूद से कहीं ज़्यादा पाई गई। सनती इलाकों के लिए दिन में 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल, जबकि तिजारती इलाकों में दिन के वक्त 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल की हद मुकर्रर है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक अगर शोर की सतह 65 डेसिबल से ज़्यादा हो तो तवील मुद्दत में जहनी दबाव, ब्लड प्रेशर और बेचैनी में इजाफा हो सकता है। मसरूफ चौराहों पर अगर 70 से 95 डेसिबल तक का शोर मुस्तकिल तौर पर बरकरार रहे तो इससे समाअत मुतासिर हो सकती है। जुबली हिल्स हलके में जारी ज़मीनी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम में एक मुनफरिद मंजर देखने को मिला। BRS के साबिक वजीर और मारूफ सियासतदान मल्ला रेड्डी ने अवाम की तवज्जो हासिल करने के लिए एक दिलचस्प तरीका अपनाया। इंतखाबी मुहिम के दौरान वो अचानक एक सड़क किनारे वाक़ सैलून में दाखिल हो गए और वहाँ मौजूद ग्राहकों के बाल काटे। इसके अलावा जुबली हिल्स असम्बली हलके में ज़मीनी इंतखाबात की गहमा गहमी जोरों पर है। मरहूम मगंती गोपीनाथ की बीवी सुनीता गोपीनाथ के लिए मुहिम चलाते हुए साबिक वजीर मल्ला रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी के बकाया वादों को उजागर करते हुए अवाम में कांग्रेस बकाया कार्ड्स भी तकसीम किए।
شہر حیدرآباد کے جبلی ہلز اسمبلی حلقے میں واقع ایک مکان میں رہنے والے نارائنا اپنی اہلیہ کے انتقال کے بعد اکیلے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر اسی مکان کے پتے پر 27 فرضی ووٹرز کا اندراج کیا گیا ہے جنہیں نارائنا خود نہیں جانتے۔ نارائنا نے بتایا کہ وہ اس بات سے سخت پریشان ہے کہ ان کے گھر کے پتے پر نامعلوم افراد کے ووٹ درج کیے گئے۔ ادھر ریاستی سرکاری عہدیداروں کی جانب سے بغیر کسی مناسب تحقیقات کے سوشل میڈیا پر بیانات جاری کرنا عوام میں الیکشن کی شفافیت پر مزید شبہات پیدا کر رہا۔ مزید تفصیلات کے لیے سنیے نارائنا کی زبانی کہ وہ اس سنگین معاملے پر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ఎంక్వైరీ చేయమని చెప్పి అతను చెప్పాడండి, అందుకే మేము చెప్తున్నాం సార్। మీరు ఈ కేబుల్ ఆపరేటర్ చేస్తున్నారు కదా, ఈ కాలనీలో కనీసం ఈ కాలనీలో అయినా ఎవరైనా నివసించేవారు? వీళ్ళు ఎవ్వరు లేరండి, ఎవరు కూడా గుర్తుపట్టలేరు, ఎవ్వరు కూడా లేరు। ఈ 26 నంబర్స్లో నేను ఇప్పటివరకు ఒక్కరి ముఖం కూడా చూడలేదు। మ్యాక్సిమం నాకు ఏమనిపిస్తుందంటే వీళ్ళు ఇక్కడ మనుషులు కాదనుకుంటాను నాకు తెలిసి। ఇప్పుడు संगारेड्डी जिले कलेक्टर पी प्रवनिया ने अहदेदारों को संगारेड्डी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में स्पोर्ट्स ग्राउंड के क़याम के लिए इक़दाम करने का हुक्म दिया। उन्होंने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अफसरान को मशवरा दिया कि वो कॉलेज के अहाते में जदीद सहूलियात से आरास्ता स्पोर्ट्स ग्राउंड के क़याम के लिए तजावीज़ तैयार करें। उन्होंने संगारेड्डी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अहाते का दौरा किया। R&B इंजीनियरिंग हुकाम और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफिसर और GGH इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने कॉलेज के अहाते में खेलों के मैदान के क़याम के लिए दरकार जगह को एडजस्ट करने के तरीकों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कॉलेज के तलबा को तालीम के साथ साथ खेलों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता स्पोर्ट्स ग्राउंड का क़याम इंतहाई जरूरी है। फेरोज खान को चप्पल लेके मारेंगे, इन बातों का इजहार मल्लेपल्ली की ख्वातीन ने किया है। मल्लेपल्ली डिवीजन के ख्वातीन की जानिब से कांग्रेस पार्टी पर सख्त तनकीद की जा रही और कांग्रेस लीडर फेरोज खान के खिलाफ अपने गम व गुस्से का इजहार करते हुए ये तक कह डाला कि फेरोज खान को चप्पल लेके मारेंगे। हाँ दोस्तों, वीडियो आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि मल्लेपल्ली सीताराम बाग में जारी तरक्की कामों को लेकर कांग्रेस लीडर फेरोज खान और उनकी टीम किस तरह रुकावट डाल रही है। ऑफिसर आए, बड़े बड़े ऑफिसर आए सोल्यूशन निकालने वाले। ये एक हारे हुआ एमएलए आके क्या सोल्यूशन निकालता? हाँ, जब बात कर रहे हैं तो गाड़ी पकड़ के भाग गया उन्होंने कहीं को। हाँ, पूरा लेडीज बात कर रहे हैं, लेडीज बोल रहे तो भी नहीं आ रहा। हमारा जफर खान साहब दिन रात मेहनत कर रहा पब्लिक के लिए। हाँ, उन्हें उतनी मेहनत कर रहा, कुछ बोल नहीं सकते। तो इसका काम यही है शायद, आना लड़ाना भाग जाना। खुद की ही टीम को लेके आ रहा, खाली GHMC कोई भी नहीं आ रहे हो ना, खुद की टीम को लेके आ रहा कभी भी। बस उतना ही है उसको। अब काम करना रोकने का काम है, काम कहीं को रोक रहा हूँ। हाँ, लेडीज परेशान है, आप देखो रोड पे। हाँ, परेशान है लेडीज। अरे उतना है, उसको कंप्लेंट करो, विजिलेंस को कंप्लेंट कर दो। बोलो उन्हें कौन है आके करने वाला है यहाँ पर? उन्हें कौन? हाँ, बोला उन्हें खुद ही आ रहा। सिर्फ और सिर्फ हमारे एमएलए साहब की सूरत देख के एमएलए साहब एक ही बोले लैंड ऑर्डर हाथ में नहीं लेना, इसलिए खामोश अभी तक है। न तो यहाँ से लंगा होके भागना फिर उन्होंने बड़ी बात से तौबा। ये राजा सिंह बोल रहा, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले के वीकोट मंडल मुस्तकिर का इलाका 3 रियासतों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के संगम पर वाक़ है। इस रास्ते पर कुछ किलोमीटर का इलाका कर्नाटक की हुदूद में आता है। हैरत अंगेज बात यह है कि यहाँ करीब ही 7 पेट्रोल पंप मौजूद हैं। आंध्र प्रदेश के अफराद ही नहीं बल्कि दीगर रियासतों से आने जाने वाले ड्राइवर भी उन्हीं पंपों से ईंधन भरवाते हैं, क्योंकि कर्नाटक में पेट्रोल की फी लीटर कीमत आंध्र प्रदेश से तकरीबन 9 रुपए और डीजल की 7 रुपए कम है। ये रास्ता चेन्नई, बेंगलुरु, कृष्णागिरी, होसूर, गोडियातम, वेल्लूर, पलामनेरु और तिरुपति जैसे शहरों को जोड़ता है। मुसलसल बैन रियासती ट्रैफिक की वजह से यहाँ कारोबार में तेजी से इजाफा हुआ है। मुकामी पेट्रोल पंप मालिकान के मुताबिक कम कीमतों की वजह से गाड़ियों की आमद व रफ्त में इजाफा हुआ है और ड्राइवर खुशी से यहाँ ईंधन भरवाते हैं। बेशतर मुसाफिर वीकोट में रुककर पेट्रोल या डीजल फुल टैंक करवाते हैं और फिर अपने सफर पर रवाना होते हैं। ये इलाका खासतौर पर तमिलनाडु,
कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के दरमियान सफर करने वालों के लिए अहम पड़ाव बन चुका है। माहिरीन मौशियात और मुकामी हुकाम के मुताबिक सरहदी इलाकों में इस तरह के पेट्रोल स्टेशन न सिर्फ मुसाफिरों के लिए फायदेमंद है बल्कि मुकामी मईशत को भी मजबूत करते हैं। इनसे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलता है और छोटे कारोबारों में भी इजाफा होता है। ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव के सबब अब बहुत से ड्राइवर वीकोट जैसे सस्ते ईंधन वाले इलाकों को तरजीह देते हैं। कीमत में नुमाया फर्क होने की वजह से यहाँ ईंधन भरवाने वालों की तादाद बढ़ रही, जिससे पेट्रोल पंप हमेशा मसरूफ दिखाई देते हैं। यही वजह है कि जनूबी हिंद के कई मुसाफिर अपने रोजमर्रा या तवील मुसाफत की सफरों से पहले वीकोट के करीब अपनी गाड़ियों के टैंक फुल करवाते हैं ताकि कम कीमत का फायदा उठा सकें। कोल्ड ड्रिप खांसी की दवा के इस्तेमाल के बाद इस मध्य प्रदेश में 20 से ज्यादा बच्चों की मौत वाक़ होने के बाद इस दवा की तैयारी करने वाली कंपनी श्रेयसन फार्मा के इजाजतनामे मंसूख कर दिए गए। इस केस की तफ्तीश कर रहे तमिलनाडु पुलिस के एहलकारों ने कई अहम नुकात से पर्दा उठाया। ताज़ा गिरफ्तारी में शामिल डॉक्टर प्रवीण सोनी पर संगीन इल्जामात आयद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर सोनी ने दवासाज कंपनी से ऐसा मुआहदा किया था जिसके तहत वो अगर अपने नुस्खे में कोल्ड ड्रिप खांसी का सिरप तजवीज़ करें तो उसे 10% कमीशन दिया जाएगा। पुलिस ने ये तफसीलात सेशन कोर्ट को पेश की। पुलिस ने मजीद बताया कि मरकजी वजारत सेहत के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने 18 दिसंबर 2023 को एक गाइडलाइन जारी की थी जिसमें कहा गया था कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस FDCs देना ममनू है। इसके बावजूद डॉक्टर ने जानबूझकर ये दवा तजवीज़ की कि जबकि उसे मालूम था कि इससे बच्चों में गुर्दों की खराबी के इम्कानात हैं। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर की निगरानी में ज़रे इलाज 15 बच्चे गुर्दों से मुतल्लिक पेचीदगियों के बाइस फौत हो गए। मजीद बराए जिस मेडिकल शॉप से ये दवा दी जाती थी वो भी डॉक्टर के खानदान की मलकियत थी। पुलिस ने इस मामले में उनके अहलखाना से भी तफ्तीश शुरू कर दी। ताहम डॉक्टर प्रवीण सोनी के वकील ने इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि दवा में अगर कोई आलूदगी थी तो इसकी डॉक्टर को कोई इतला नहीं थी और वो इसमें बराह रास्त मुलव्विस नहीं है। ये वाकया मध्य प्रदेश के जिले छिंदवाड़ा में पेश आया जहां कोल्ड ड्रिप सिरप इस्तेमाल करने वाले 10 बच्चे हलाक हो गए। इसके बाद 5 अक्टूबर को मुकामी पुलिस ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया। डॉक्टर ने जमानत के लिए दरख्वास्त दी जिस पर मामला एडिशनल सेशन जज प्रासिया गौतम कुमार गुज्जर की अदालत में ज़ेर समाअत। अदालत ने वाज़ेह किया कि डॉक्टर ने हुकूमत की हिदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए 4 साल से कम उम्र के बच्चों को यह सिरप तजवीज़ किया जो संगीन गफलत है। इसी वजह से अदालत ने जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। केस की तफ्तीश अब भी जारी है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం.
తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా అజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद. फोन नंबर 9573048697. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.